In the previous class, we have seen the ingredients of the concrete. Okay, this already we are aware of that. Now let me go to the next one. What about the cement? Let me see the definition of the cement. Already you know the concrete technology very well in the BTech and MTech level. Now, even though I have to refresh once again. Okay, cement is a binding material. A simple common sense, we can say that a cement is defined as an adhesive material and capable of the uniting fragments or masses of the solid matter to a compact whole. This is actually basic definition, but in the simple layman language, we can say that the cement is a binding material. It can be used in the construction industry. That much is enough. Okay. Now, the production of the cement. Let me go to the chemistry of the cement a little bit. Now, how the cement will be produced? The main raw materials are the limestone and the second one is clay. Only the two materials we need for the production of the cement. Already you people are maintaining the running notes. And I have already clearly told to you, you have to, Yes. while sitting in the class, you have to sit with a class notes. That means a 100 pages notebook you have to purchase, and with pen and paper you have to note down with the date and time. Suppose today date is, for example, 06 and 10 2020 4:15 a.m. Okay, this is the class. Okay na? What are the basic ingredients required for the manufacture of the cement? Cement manufacture करने के लिए basically two materials are required. One is limestone, very important, limestone. अगर limestone नहीं मिल रहा है, फिर chalk ले सकता है, chalk. That means next, second material is clay. Argillaceous material है clay. Now, if you go to the slide, and majority of the cement industry is using the limestone only, the calcareous material. Argillaceous material, majority of the today industry is using the clay. If the clay is not available, particular quality of the clay, then you can go for the shale. That means generally shale is the second priority. Always you may remember that shale. Okay, you note it down. That means the main raw material is these two, limestone and clay only. Majority of the 90% of the cement industry using the limestone and clay only. Because if the limestone is not available, then only you can go for the chalk. And if the clay is not available in the tremendous quantity and the particular quality of the clay is not available, then you can go for the shale. But these limestone and oxide compound. That means the measurement is in terms of the oxide compound. Suppose in case of the milk, what is the measurement in terms of the liters? In kg of the vegetables, you will measure in terms of the kg. In the similar way, the ingredients of the cement you can measure with the help of the oxide compounds. So that's why all the ingredients you have to measure with the help of the oxide compound. That's why the calcareous material means the limestone contains the 90% of the calcareous materials. That's why in the cement industry we are using the limestone is the basic source. Okay, next, this is argillaceous material. Argillaceous material. That means the cement needs two materials. Number one is calcareous material, number two is argillaceous material. What is meant by argillaceous? Argillaceous मतलब है जमीन है, that means भूमि है, that means ये जो धरती है, that means this is the clay, that means this is called the argillaceous material. Okay ना? So clay material is required, and second है calcium bearing material. Calcium bearing material is called calcareous. Very important. The limestone is also known as the calcareous material. The clay is also known as the argillaceous material. Now come back to the slide. Now you see, I have already marked with the red color. That means these two material, that means chalk also there and shale is also there. But you have to see my cursor. You have to remember this limestone and clay only. These two are the major ingredients for manufacturing of the cement. Very important. That means while you want to prepare a cement, you need limestone or chalk. But chalk is the second material.
and the second material is clay. If the clay is not available in that particular area, then go for the shale. But now you can see that means limestone contains the CaO bearing, CaO material, plenty of the CaO, that means calcium oxide is present in the limestone. This is very, very a point, you don't forget this. Okay, limestone contains a lot of the CaO bearing content. Next, the clay content obviously contains the SiO2, that means silica oxide, silica dioxide. Next, MgO, magnesium oxide, and sulfur trioxide, SO3. That means the clay will contain especially three minerals. What are those three minerals? SiO2, MgO, SO3. At least these two items you have to remember. That means limestone contains CaO and clay contains SiO2. Silica. Silica is essentially required. The silica only the predominant material in the clay. The clay contains the predominant, that means dominating material is SiO2. Limestone, the predominant material is calcium. Next, another supplements. Supplements मतलब है only minor. That means aluminium का जो ore है bauxite है. That means aluminium trioxide, iron. Iron मतलब है ferrous materials. And alkalis, a little bit है K2O and NaO2 है ना. That means ये potassium oxide and potassium dioxide and sodium dioxide ये है ना. These are called, these two materials are called the that means alkalis. Okay na. The major ingredients are only two. Number one is calcareous material, that is other name is limestone. Second one is argillaceous material, clay. Okay, remaining things also there, but those are a minor content. That means suppose some boys are not taking the food sufficiently, then what we will give? You will give the Complan and Bornavita as a supplement. Similar way, that means these bauxite, iron oxide and alkalis, these three are only the supplements. The main food is only limestone and clay. This much is enough. Next, now you go to the wet process and dry process. But now I want to tell you one thing. The wet process, if you are producing the cement in the two process, that means one is dry process and the second one is wet process. Here, if you prepare the cement in the wet process, your quality of the cement is rich. That means quality of the cement is very much high. That means the quality is very good. That means in case of the wet process मतलब adding of the water. Adding of the water. That means you are adding some water in the raw meal. That means this lime powder and this argillaceous clay mix, that means they are pulverized and after that they will add the water. If they are adding the water, the uniform mixture will be formed. That means uniform, that means raw meal will be prepared. So that's why the final product of the cement is very rich quantity. That means rich in mix. That means good quality. That means you can maintain the good quality. Okay. Next, in the dry process, that means if you go to the dry process, another method is there. The dry process of the cement, the little bit poorer quality. That means poor quality of the cement will be produced. This is the general rule. But the thing is, here you may ask me one question. Sir, then if the poor quality, but nowadays widely dry processing is used, what is the reason? Yes, exactly. But olden days, that means olden days, 1970 around, all the cement industries made up of with the wet process. That means wet process, old industries. But wet process very costly, because once you are adding the water in the raw meal, lot of energy is required, because the cement need at least 1400 to 1600 degree temperature in the kiln. Okay, in the rotary kiln, that much temperature is needed. In that temperature, if you are raw meal is very, very waterish material, then too much energy is required. That means a lot of fuel is required. That's why one cement bag will costly around 500 rupees. That means because of the lot of energy. That means one bag cement, if you want to make lot of gas or lot of the coal is required to completely burn the that wet material. But nowadays, what they did here is that means pyroprocessing process, they are entirely changed. That means stage mixing burning is came. Okay, in this, that's why nowadays latest plants, all plants are implemented with the dry process. So in the dry process, very little bit quantity. That means only 7 to 8% of the water is only little bit water is added. In case of the wet process, around 20% of the water is added in the raw meal. That's why a lot of energy is required. But in case of the nowadays,
dry process, what the people is doing, they are adding the very little bit so that they will consuming the less energy, so that the bag production cost is only nowadays 360 rupees to 380 rupees. You are getting the 50 kg of the cement, either OPC or PPC. Approximately the range is 400 rupees on the today bag cost. Okay, na? Now you see, let we see a little bit around the dry manufacturing process flow diagram. Now you see the wet process. In the wet process, the name indicates that some water is added here. Now you see clay. What is the clay? Clay is the first number one material. You are already note down in the your notebook. है ना, आपका नोटबुक में 2 मटेरियल्स आपने नोट किया है. नंबर 1 इज कैलकेरियस मटेरियल. कैलकेरियस मटेरियल में क्या है? व्हाट इज दैट? लाइमस्टोन. अगर लाइमस्टोन मेरे को मिल नहीं रहा है पर्टिकुलर एरिया में, गो फॉर द चॉक, मतलब चॉक यूज कर सकते. बट चॉक में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, बहुत लिटिल बिट रहते हैं. समझ में आ गया ना? नेक्स्ट सेकंड है आर्जिलेशियस मटेरियल. आर्जिलेशियस मटेरियल में क्या है? क्ले. क्ले इज द आर्जिलेशियस. अगर क्ले मिल नहीं रहा है, देन गो फॉर द शेल. मतलब शेल आल्सो एक्सेप्टेड, बट इन दैट शेल मिनरल, दैट मीन्स सिलिका है very little bit, that means you will get the only little bit, but clay plenty of the silica is available. But in the present case I am using the clay and this is limestone powder. Okay, what in this wet process they are doing? Now you see in the picture, my cursor, you see the clay is मतलब one side and water is mixing and a wash mill, a very big mill is there. That means just like a one container is there, and that the clay and the water will be mixed. That means just like a slurry. स्लरी मतलब है जस्ट पानी मिलाएगा, मतलब वो मिट्टी में, दैट मीन्स ब्लैक कलर मिट्टी है, मतलब उसी में मतलब पानी मिलाएगा, जस्ट लाइक कीचड़ जैसा स्लरी बनाएगा, उसको बोलते हैं क्ले स्लरी. स्लरी मतलब है जस्ट लाइक पेस्ट. ओके, नाउ योर कंटेनर इज रेडी. दैट कंटेनर इज कॉल्ड द आर्जिलेशियस मटेरियल. आर्जिलेशियस मटेरियल मतलब है क्ले मटेरियल. क्ले मटेरियल है पूरा एक साइलो में, मतलब पानी और मिट्टी मिला के, मतलब बिल्कुल स्टिर करके, दैट मीन्स मिक्सिंग करके एक साइलो में रिजर्व करके रखता है. नेक्स्ट सेकंड साइलो. Second silo मतलब है just like a very big container. The container diameter is 25 meter diameter and 50 meter height. That much big container में मतलब ये chalk powder मतलब पल्वराइज करेगा. पल्वराइज मतलब है ये जॉ क्रशर्स है, इंपैक्ट क्रशर्स है ना, रोलर क्रशर्स है, वाइब्रेटरी क्रशर्स है ना, ये हैमर क्रशर्स है, यूज करके बड़ा बड़ा बोल्डर्स को पहले दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस. Then that powder they are added to the water. Now you see here, that means this limestone powder. Now I don't mind the chalk. That means chalk I don't want, but I want good quality cement, so I will use the limestone. Okay na? So limestone and water, these two are mixed with the one another container. That means your argillaceous material is ready and calcareous material. Calcareous मतलब CaO content, CaO calcium oxide content. The material which contains the calcium oxide, that is called the calcareous material. The material which contains the silica is the predominant material, that is called the argillaceous material. Now your raw meal is ready. Now this raw meal is blended. Blended matlab hai, that means how much percentage this clay material is added and how much this limestone should be added. According to the computerized program in the cement plant, they will use and blending करेगा. Blending मतलब है मान लीजिए ये 25%, ये है 75%, अदरवाइज ये 60%, ये है मान लीजिए 17%, लाइक दैट ब्लेंडिंग करेगा. ब्लेंडिंग मतलब है फर्स्ट मटेरियल कितने ऐड करना, सेकंड मटेरियल या कितने ऐड करना. नाउ ये पूरा ब्लेंडिंग के बाद है एक बड़ा साइलो में, साइलो मतलब वेरी बिग कंटेनर, वो कंटेनर में स्लरी टैंक बोलते हैं. स्लरी मतलब है इट इज कंटेनिंग द कंप्लीट वाटर रिच मटेरियल. ये वाटर रिच मटेरियल है, स्लरी टैंक में रिजर्व करेगा, क्योंकि मतलब समर सीजन में क्या करेगा, माइनिंग करेगा लैंड्स में. माइनिंग करके ये लाइमस्टोन है पाउडर लेके आएगा, फिर मतलब पूरा स्टोर कर देगा. पूरा साल भर है, मतलब सीमेंट प्लांट में कितने मटेरियल लगेगा पूरा स्टोर करेगा. क्यों? बरसात का मौसम में मतलब यू कांट डिग दी लाइमस्टोन, मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स में लाइमस्टोन है डिग नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द रेन वाटर, है ना, बरसात का मौसम है. दैट्स व्हाई नाउ योर स्लरी टैंक इज रेडी, है ना. नाउ ये स्लरी टैंक के बाद है सम मिनरल में एडमिक्सचर. सम मिनरल एडमिक्सचर्स है, 3 मिनरल एडमिक्सचर्स ऐड करेगा. वन इज, याद रखना अदरवाइज नोटबुक में लिखो. Then first one is bauxite ore. That means aluminium का जो ore है, that means bauxite. Aluminium का जो utensils है ना, घर में किचन में यूज करता है, जिसका जो मटेरियल है ना bauxite. That means bauxite some percentage. Next second material is ferrous मतलब है iron material, है ना, ferrous material. Next third material है alkalis. ये तीन है supplementers, ये तीनों भी ऐड कर देगा.
Main materials is two. Number one is calcareous and argillaceous. Along with these two other three materials, what are those? Number one is bauxite, number two is iron, number three is alkalis. ये तीनों टोटल मटेरियल्स कितने हो गए बाबा? मतलब 5 मटेरियल्स. ओके, दिस 5 मटेरियल्स है. नाउ मतलब ये क्या करेगा? ये रोटरी किलन, दैट मींस ये डायमीटर ऑफ द रोटरी किलन है अराउंड मतलब 50 मीटर से लेके 200 मीटर लेंथ रहती है. दैट मींस स्लोली स्लैंट डायरेक्शन में. फिर ये है बॉल बेरिंग्स के ऊपर है ना, रोटेट करेगा मतलब स्लोली 3 आरपीएम 4 आरपीएम में. इसका जो डायमीटर है ना 3 मीटर से लेके 8 मीटर्स डायमीटर रहता है. सो मतलब रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स रहती है मतलब इनसाइड. सो ये स्लरी है, धीमे धीमे लोड करेगा. ये इसको बोलते हैं रोटरी किलर. ये रोटरी किलन का ये फिगर में देखो, ये दूसरा एंड पे मतलब इधर क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ द कोल एंड नाउअडेज गैस भी यूज कर रहा है ना, गैस भी यूज कर रहा है नाउअडेज, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहा है. एक आग लगा देगा. दैट मींस जस्ट लाइक ए फायर. दैट मींस ये फायरिंग जोन है. दैट मींस दिस इज कॉल्ड द बर्निंग जोन. ये बर्निंग जोन में जो भी ये कीचड़ आ जाएगा, कीचड़ मतलब है, मेरा मीनिंग है स्लरी. जो भी ये स्लरी टैंक से आपका जो भी 5 मटेरियल का जो मिक्सअप है मतलब स्लोली फीड करेगा इस साइड, वन एंड से फीड करेगा. मतलब ये जो रोटरी किलन है ना अराउंड दी 50 to 200 मीटर्स लेंथ रहते हैं. ये स्लोली रोटेट करता रहेगा. ये बर्निंग जोन में 1400 से लेके 1600 डिग्री टेम्परेचर है मतलब वो मेंटेन करेगा. समझ में आएगा ना? विद दिस टेम्परेचर these calcareous materials and argillaceous materials, this bauxite, iron and alkalis material है, चारों है जो स्लरी है ना, it will go into the pyroprocessing. pyroprocessing मतलब क्या है? उसका जो चेंजेस करेगा, that means chemical changes. just like है मतलब जो वेट स्लरी है, it will become just like a clinkers, छोटा छोटा बॉल्स जैसा मतलब इधर है गिर जाएगा. that means this is called the collection of the clinkers. These clinkers they are cooled मतलब because 1400 डिग्री टेम्परेचर में ये क्लिंकर से नीचे गिर रहा है, टपक रहा है ना, जस्ट लाइक स्मॉल स्मॉल 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर साइज का गोली गिर रहा है. मतलब इसको ठंडा करना पड़ेगा. ये कूलर्स पंखा लगता है मतलब वेरी हाई प्रेशर कूलिंग फैन से लगता है. सो दैट ये कूलर्स है दे विल ब्रिंग इनटू मतलब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर. एक बार नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद क्या करेगा? फिर इसको बाल मिल में डाल देगा. जो भी ये क्लिंकर्स है बाल मिल में करेगा. सीमेंट में एक प्रॉपर्टी है. What is that property? जैसा जैसा सीमेंट मटेरियल को आपने if you are added the water immediately after some particular 3 hours 4 hours के बाद है it will become a very hard mass. that means पत्थर बन जाएगा. that is the beauty of the cement है ना, ये पत्थर बन जाएगा. लेकिन हमको क्या चाहिए? we need some working time. working time मतलब क्या है? मान लीजिए सीमेंट बोरी है मतलब नीचे मान लीजिए सैंड में मिला दिया मतलब 1 बोरी सीमेंट है मतलब वो 5 बोरी सैंड है मतलब दोनों मिक्सअप कर दिया. मिक्सअप करने के बाद ईट ईट जोड़ने के लिए दीवार बनाने के लिए तापी मिस्त्री को एटलीस्ट है 3-4 घंटा तो चाहिए. अदरवाइज मान लीजिए पानी मिला दिया तुरंत सेट बन गया था, सेटिंग हो गया मतलब वो बेकार हो जाएगा. इसलिए क्या करना? तुरंत है, क्विक सेटिंग नहीं होना चाहिए. इफ यू आर एडेड वाटर इमीडिएटली टू द सीमेंट देन यू डोंट वांट टू बिकम द सीमेंट एज ए रॉक. That means you don't want that because at least some working time is required. working time मतलब क्या है? सीमेंट एंड पानी दोनों मिलने के बाद है तुरंत सेट नहीं होना चाहिए. अगर तुरंत सेट हो गए तो मतलब कैसे वर्क करोगे यार? मतलब तुरंत पत्थर बन गया है ना. जस्ट लाइक एडिटिव मटेरियल. आपका जो फेविक्विक वगैरह देखो तुरंत है आपने खोल दिया तुरंत है मतलब 5 सेकंड के अंदर है ना मतलब स्टोन बन जाएगा. जस्ट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट एटलीस्ट है 2-3 घंटा वर्किंग टाइम चाहिए. ये 2-3 घंटा में क्या है? तापी मिस्त्री एंड कूली मिलके दीवार मतलब ईट और ईट जोड़ देगा, दीवार बना देगा. समझ में आएगा ना? फॉर दैट पर्पस व्हाट यू विल डू मतलब वो 4 to 6%. दैट मींस 2% से लेके 6% का बीच में जिप्सम ऐड करेगा. नाउ यू सी माय कर्सर, इधर है जिप्सम. दैट मींस ये जिप्सम है ऐड करेगा. जिप्सम में एक प्रॉपर्टी है, वो जिप्सम क्या करेगा? जो भी ये फास्ट सेटिंग है, रैपिड सेटिंग है, क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट. सीमेंट कब सेट हो जाएगा? पानी के साथ है. जब सीमेंट मिल गया है इट विल बिकम ए वेरी क्विक. तो उसको स्टॉप कर देगा मात्र. दैट मींस 1 or 2 आवर से लेट कर देगा. इसको बोलते हैं जिप्सम. ये जिप्सम इसलिए ऐड करता है उसका जो सेटिंग को दैट मींस फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए. समझ में आएगा ना? सो ये जिप्सम ऐड करोगे. फिर ये जिप्सम ऐड करने के बाद ये बाल मिल में मतलब फाइन पाउडर मतलब इधर मैं एक चीज बता रहा हूं. इफ आपका जो बाल मिल में जितना फाइनेस्ट मटेरियल बनाओगे उतना महंगा पड़ेगा क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ये ग्राइंड करने के लिए बाल मिल में बहुत एनर्जी लगेगा, कॉस्टली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बिजली लगेगा. इसलिए आपको ओपीसी 43 ग्रेड 53 ग्रेड एंड 33 ग्रेड ये 3 ग्रेड्स ऑफ द सीमेंट है ना. दैट मींस नाउ यू सी ओपीसी में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में
33 ग्रेड सीमेंट है, नेक्स्ट 43 ग्रेड सीमेंट है एंड 53 ग्रेड सीमेंट है। ये कुछ नहीं है, देखो ये 33 ग्रेड मतलब है, मान लीजिए 1:3, 1:3, 1 मतलब है 1 यूनिट इज सीमेंट एंड 3 यूनिट्स इज स्टैंडर्ड सैंड। 1:3 में आपने क्यूब्स बना दिया, छोटा छोटा ये क्यूब्स बना दिया, 7.5 बाय 7.5 बाय 7.5 अप्रॉक्सीमेट साइजेस है, ये क्यूब बना दिया। फिर ये क्यूब को 28 डेज में आपने टेस्ट किया, दैट मीन्स ओनली सैंड एंड सीमेंट ब्रदर, बिकॉज दिस इज द सीमेंट, सी मतलब सीमेंट, यस मतलब है सैंड, ये सैंड आल्सो मतलब स्टैंडर्ड सैंड, ये नॉर्मल सैंड नहीं है, ये वेन्नूर सैंड है, ये स्टैंडर्ड सैंड, जस्ट लाइक चीनी जैसा, शुगर जैसा रहते हैं। सो दैट सैंड है मतलब 3 यूनिट्स, मतलब वो सीमेंट है, दैट मीन सी मतलब है सीमेंट है 1 यूनिट। मान लीजिए भाई ये एक तसला मतलब वो सीमेंट ले लिया, सो 3 मतलब 3 दैट मीन्स 3 तगारी मतलब सैंड लोगे, वो सैंड है सैंड, देन यू विल मिक्स अप द मतलब एक पेस्ट बना दीजिए, दैट मीन्स उसको बोलते हैं सीमेंट पेस्ट, है ना, ये सीमेंट पेस्ट। ये सीमेंट पेस्ट से आपने क्यूब्स बनाइए, छोटा 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 3 क्यूब्स बनाइए। ये 3 क्यूब्स को आपने 28 डेज के बाद टेस्ट कर दीजिए। आपका जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट मीन्स मैं MPa में लिख देता हूं, MPa। अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 33 पर MPa देन इट इज सेड टू बी ए OPC 33 ग्रेड। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, इसी में बाल मिल का मतलब कैपेसिटी है, मैं बहुत बड़ा मतलब बड़ा मैं बाल मिल यूज करके ज्यादा टाइम इस्तेमाल करके ज्यादा टाइम यूज करके मैं और फाइन कर देता हूं। सीमेंट है, जितना फाइन करोगे आपको महंगा पड़ेगा। बोरी है मतलब 33 ग्रेड से 43 महंगा है, 43 ग्रेड से 53 ग्रेड महंगा है। क्यों? आपका जो पल्वराइजेशन है फाइनेस्ट स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइन बनाना चाहिए। फॉर दैट पर्पस यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी। इसलिए मैं क्या करता हूं, दैट मीन्स ये 43 ग्रेड बनाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 43? दैट मीन्स 1:3 सीमेंट पेस्ट से आपने 28 डेज का 3 क्यूब्स बना के टेस्ट किया था, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ऊपर आना चाहिए, दैट इज द मीनिंग। समझ में आएगा ना? नाउ ये 43 ऐसा नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका जो 33 ग्रेड का सीमेंट को दोबारा और 2-3 घंटा और मिक्सअप कर दीजिए। कहां पे? ये बाल मिल में। दैट मीन्स इन द बाल मिल यू विल ग्राइंड मच एंड मच मोर, देन आपका 43 ग्रेड सीमेंट बन जाएगा। समझ में आएगा ना? सो दैट आपका स्ट्रेंथ है बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना स्पेसिफिक सरफेस फाइन सीमेंट पार्टिकल बनाओगे आपका स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा, बिकॉज आपका जो फाइननेस है बढ़ जाएगा, तो आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा। जब वाटर में मिक्स हो जाएगा मतलब पूरा कवर हो जाएगा, दैट मीन्स सैंड एंड सीमेंट को, दैट मीन्स स्माइल फाइनेस्ट मतलब पोर्स को भी ये भर देगा। दैट मीन्स नाउ इफ यू गो फर्दर, दैट मीन्स 53 ग्रेड सीमेंट। 53 ग्रेड सीमेंट मतलब क्या है? और फाइनेस्ट मटेरियल बनाना है। और फाइनेस्ट मटेरियल के लिए आपका जो बाल मिल रहा है उसमें तो और मतलब वो बेस्ट क्वालिटी बाल मिल रहा है, मतलब उसको ऊपर है वैरायटी बाल मिल से रहेगा। फिर उसमें क्या करोगे? फिर और फाइन क्वालिटी बनाओगे। सो 53 ग्रेड सीमेंट मतलब है मच मोर फाइनर मटेरियल बनाओगे। दैट मीन्स OPC 33, 43, 53 में अनडाउटेडली 53 ग्रेड पार्टिकल का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, टेक्निकली बात करो, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सो मेनी स्पेसिफिक सरफेस area. Specific surface area is more in case of 53 when compared with the 33. Specific surface area मतलब 53 का ज्यादा रहेगा। So many square meter per gram. That means specific surface area का यूनिट है so many मतलब स्क्वायर मीटर पर 1 ग्राम ऑफ द सीमेंट। 1 ग्राम ऑफ द सीमेंट को मतलब कितने स्क्वायर मीटर, मतलब भाई ये देखो भाई, ये सीमेंट ग्रेन्स है भाई, ये सीमेंट ग्रेन्स है ना। देखो मेरा पिक्चर, ये सीमेंट ग्रेन्स को ये मतलब इसका जो टोटल सरफेस है नाप लो, फिर सेकंड ग्रेन का नाप लो, थर्ड ग्रेन का नाप लो, फोर्थ ग्रेन का नाप लो। वो 1 करोड़ से ऊपर मतलब वो एक पिंच ऑफ दी सीमेंट ले लो, उसमें 1 करोड़ से ऊपर रेणु रहते हैं ना, दैट मीन स्मॉलेस्ट थिनी पार्टिकल, उसका जो टोटल एंटायर सरफेस को जोड़ दो, ऐड कर दो, देन व्हाट एवर द एरिया इज कमिंग दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर 1 ग्राम ऑफ द सीमेंट। अगर ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज्यादा है उसका मतलब क्या है? यू आर ग्राइंडेड इन दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्राइंडिंग। जितना फाइनेस्ट करोगे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको तो मैं बहुत बता रहा हूं सिलिका फ्यूम, आपका सिलिका फ्यूम का स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा आएगा? दैट मीन सिलिका फ्यूम है अराउंड 100 टाइम्स फाइनर देन द सीमेंट। दैट मीन सीमेंट है कितने फाइन रहते हैं भाई? वेरी फाइन है। दैट मीन्स ये जो सीमेंट है वेरी फाइनेस्ट मटेरियल, जस्ट लाइक ए टाल्कम पाउडर जैसा रहते हैं, मतलब फिर उसको बाद भी 100 टाइम्स फाइनर मतलब है। इमेजिन करो जो सिलिका फ्यूम है
दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट दैट मीन्स फेर्रोसिलिकॉन एलाइज में जो धुआं निकलता है, जस्ट लाइक स्मोक निकलता है ना, उसी को कंडेंस करके दैट मीन्स ठंडा करके बनाता है, वो धुआं से बनता है। सो दैट कितने फाइनेस्ट मटेरियल है, नाउ यू कैन इमेजिन। दैट्स व्हाई दैट फाइननेस इज नॉट मेजर्ड बाय द ब्लेंस। आपने जो सीमेंट का जो परमेबिलिटी नापता है, दैट मीन्स जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया नापता है, मतलब ब्लेंस ऑपरेटर से नापता है। बट ये जो सिलिका फ्यूम है, मतलब 100 टाइम्स मोर फाइनर है। दैट्स व्हाई उसको नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन मेथड्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं T1 क्वेश्चन पूछता हूँ। T1 में मतलब व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सिलिका फ्यूम? देन आंसर है ये ABCD में आपको नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन मेथड। नाइट्रोजन अब्जॉर्प्शन मेथड है वेरी मतलब सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें नापना पड़ता है, क्योंकि दैट मच फाइनेस्ट मटेरियल है, मतलब वो ये सिलिका फ्यूम 100 टाइम्स मोर फाइनर देन दी सीमेंट। सीमेंट ऑलरेडी फाइन मटेरियल है, उससे भी 100 टाइम्स फाइनर रहते हैं सिलिका फ्यूम। बहुत कॉस्टली मटेरियल भाई सिलिका फ्यूम है। 1 kg सीमेंट कितने, 1 kg सीमेंट है लगभग 4 रुपी, दैट मीन्स 400 रुपीज पर 50 kg, सो 4 रुपीज पर kg सीमेंट। ओके, बट सिलिका फ्यूम है ना 25 रुपीज पर kg, दैट मीन्स एक सीमेंट है 20, सिलिका फ्यूम है 10 to 15 टाइम्स महंगा पड़ती है, समझ में है ना। इसलिए सिलिका फ्यूम है कम यूज करियो सीमेंट में। दैट मीन्स आपने रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट में यस्टरडे मैंने एक चीज बता दिया था, रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट, रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट आरपीसी बोलते। ये रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट में नो कोर्स एग्रीगेट एट ऑल, द बिल्कुल कोर्स एग्रीगेट है यूज ही नहीं करोगे। दैट मीन्स इसमें क्या है, द सिलिका फ्यूम, that means the silica fume and standard sand, standard Vennur sand, ये standard sand will be used। standard sand मतलब है almost just like sugar जैसा रहता है, बिल्कुल मिट्टी का कंटेंट है 0। that means मतलब ये जो सैंड को बिल्कुल वॉश करेगा, 3 बार 4 बार 5 बार वॉश करेगा, तब जो भी सैंड बनेगा ऑलमोस्ट है चमकती रहती है। दैट मीन्स मिट्टी का कंटेंट है बिल्कुल 0। दैट इज वेन्नूर। वेन्नूर चेन्नई में जो वेन्नूर है मतलब उधर से बन के आती है, मतलब एक बोरी है, दैट मीन्स 60 to 70 रुपीज में लेके आता है, समझ में ना। उसमें भी जोनिंग रहते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4, ओके ना। सो ये स्टैंडर्ड सैंड मिलाना पड़ता है तभी बनेगा। फिर इसके बाद है इसमें हाई रिच मतलब सीमेंट का, दैट मीन्स सीमेंट यूज करेगा वेरी हाई क्वांटिटी में सिलिका फ्यूम। जनरली सिलिका फ्यूम है ना, द कोड बुक कहता है नॉट मोर देन 8 to 10% सिलिका फ्यूम है नॉर्मल कंक्रीट केसेस में। जनरली सिलिका फ्यूम यूज करोगे हाई स्ट्रेंथ में यूज करोगे ब्रदर, दैट मीन्स ओनली द सिलिका फ्यूम जनरली यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ ओनली। नॉर्मली मतलब बिलो M40 ग्रेड के नीचे सिलिका फ्यूम है यू कांट यूज। अगर आपने यूज किया तो महंगा पड़ेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट है ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, समझ में ना। सो सिलिका फ्यूम है नॉर्मल रेंज इज लेस देन 8%, 8% से ज्यादा सिलिका फ्यूम यूज मत करियो। बट इन केस ऑफ द रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट, इसका जो मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने रहते पता है, मोर देन 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट मीन्स जो नॉर्मल का इमेजिन करो ना, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट मीन्स इमेजिन करो दिस इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। मतलब स्टील है या मतलब Fe415 स्टील है, मतलब आपको तो स्टील पता है ना, Fe250 है ना, फेरस मतलब 500 ग्रेड, Fe यस सर 415 ग्रेड, ये यूज करोगे ना सरिया। ये सरिया से भी मतलब और मतलब ताकतमंद, दैट मीन्स बॉम्ब ब्लास्टिंग, दैट मीन्स एक्सप्लोजिव रेसिस्टेंट कंक्रीट। एक्सप्लोजिव रेसिस्टेंट मतलब क्या है, मान लीजिए कभी भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मतलब उसमें जो बिल्डिंग है टूटना नहीं चाहिए। दैट मीन्स इसके अंदर है बॉम्ब, मतलब RDX बॉम्ब लगा दिया तब भी ये कंक्रीट का ब्लॉक है, टूटना नहीं चाहिए। दैट मीन्स इफ यू आर ग्रेटर देन 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंक्रीट यूज किया है एट दैट टाइम, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट। इसमें बिल्कुल नो कोर्स एग्रीगेट एट ऑल, दैट मीन्स कोर्स एग्रीगेट यूज ही नहीं करोगे, ओनली सिलिका फ्यूम कंटेंट है। इफ यू गो टू द 30% 40% महंगा पड़ेगा, बट समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स DRDO प्रोजेक्ट्स जानता होगा मिलिट्री में, मतलब DRDO दैट मीन्स वो जो डिफेंस एक्टिविटीज है वो लोग है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, मतलब वो है ना, वो जो तैयारी में मतलब जो एक्सप्लोजिव्स को रख के मतलब उसको टेस्ट करने के लिए ये RPC ब्लॉक्स है यूज करेगा। दैट मीन्स जो कंटेनर्स है ना, दैट मीन्स ये रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट से एक डोम बना देगा, वो डोम के अंदर है मतलब ये मटेरियल्स है स्टोर कर देगा। अदरवाइज है ना, मतलब उतना बड़ा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं है तो वो डोम के अंदर से लीकेज चलेगा। दैट मीन्स ये रिएक्टिव, दैट मीन्स इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दैट मीन्स ये रेडियम, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, ये बाहर आ गए तो आजू बाजू में जो भी विलेज पब्लिक है मर जाएगा,
समझ में आएगा ना. So that's why you need at that time very high strength concrete. For that purpose you need the very high quality, that means silica fume. In that case the silica fume more than 10%, more than 20%, more than 40%, up to 50% silica fume भी permitted है. Except other cases silica fume में ज्यादा यूज मत करिए. मैं बता रहा हूं आपका रिसर्च मतलब प्रोजेक्ट में कंक्रीट में सिलिका फ्यूम बहुत कम यूज करिए. दूसरा फायदा बताता हूं मैं, मतलब मैं वेरी थोड़ा ट्रेमेंडस स्पीड में जा रहा हूं. यू हैव टू कैच, मतलब यू हैव टू कैच. मतलब मैं एक बेसिक डायग्राम बताता हूं, आप ध्यान से फॉलो करो. आपको तो बीटेक में पढ़ाया नहीं पढ़ाया आई डोंट नो. because now you see, because this is called the basic diagram. ये basic diagram मतलब क्या है? ये है compressive strength. compressive strength y axis में. x axis में क्या है? water cement ratio. very very important. water को cement को, that means WC ratio है ना. मान लीजिए जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है, that means वाटर सीमेंट रेशियो मान लीजिए 0.25, वाटर सीमेंट रेशियो 0.3, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, like that 0.8, like that x एक्सिस में. y एक्सिस में देखो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ यू ऑब्जर्व दिस कर्व. ये कर्व ऑब्जर्व किया. मान लीजिए आपका जितना भी वाटर कंटेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो मतलब कम है, आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ज्यादा. दैट मींस वाटर सीमेंट रेशियो जितना लोएस्ट रखोगे, स्मॉलेस्ट रखोगे, आपको स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा मिलेगा. मोर एंड मोर स्ट्रेंथ मिलेगा. वेरी वेरी दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है. दैट मींस यू नाउ यू सी, जैसा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जा रहा है, 0.3 हो गया, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? मतलब डाउन चल रहा है. समझ में आ गया ना. और मैं वाटर सीमेंट रेशियो और बढ़ा देता हूं. नाउ यू सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है डाउन, और मैं वाटर सीमेंट रेशियो और बढ़ाता हूं. दैट मींस हमेशा सीमेंट कभी भी कंक्रीट बनाओगे है ना, ऑलवेज यू हैव टू मेंटेन वाटर सीमेंट रेशियो एज फार एज पॉसिबल वेरी लो एंड लो. मतलब वेरी बेसिक पॉइंट. आज मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं. हाँ इधर है एक स्टूडेंट मेरे से बोल, सर मतलब फिर मैं वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है. वाटर सीमेंट रेशियो मतलब क्या है? पानी का जो कंटेंट है न्यूमरेटर में एंड सीमेंट का कंटेंट है डिनोमिनेटर में. मैं फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में मान लीजिए 180 लीटर्स है पानी यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग दी 180 लीटर्स वाटर. ओके. नाउ सीमेंट है मान लीजिए 450 केजी यूज कर रहा हूं. ये दोनों का रेशियो निकालो. फॉर एग्जांपल मेरे को आ रहा है 0.4 आ गए. फॉर एग्जांपल द वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.4. मतलब इधर है स्टूडेंट पूछता है, सर मैं 180 लीटर का जगह पे मैं एक काम करता हूं ना, आप ही बता रहा है वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब मैं एक काम करता हूं 120 लीटर्स रख देता हूं सर, 120 लीटर्स एंड 450 सीमेंट. तब है आपका मटेरियल क्या होगा? देन गुड. दैट मींस दिस वाटर सीमेंट रेशियो इज ओनली 0.21. फॉर एग्जांपल वाटर सीमेंट, यू कांट यूज दिस, यू कांट यूज दिस बिकॉज मतलब असल हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, to produce heat of hydration, that means to conduct heat of hydration, to conduct the heat of hydration, minimum quantity of the मतलब water required is 0.23. that means ये chemical process, that means heat of hydration means क्या है? the chemical reaction between water and cement. the cement को water का बीच में जो chemical reaction को बोलते heat of hydration. very very important, heat of hydration. असल ये हीट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट ही नहीं होगा. दैट मींस क्यों? आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 0.23. ये 0.323 है तभी आप मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगा. आपने जो वाटर डाला है उसमें असल सीमेंट में पानी मिला नहीं है. दैट मींस देयर इज नो वाटर. देन आपको स्ट्रेंथ का बात कहां से आ गया? दैट मींस यू आर नॉट एट ऑल मिक्स अप द सफिशिएंट वाटर. देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंथ. मतलब माइक्स वगैरह अनम्यूट कर दो. भाई अक्षय माइक बंद करो. नेक्स्ट. नाउ आपका जो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इज 0.23 फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. T1 में मैं ऑब्जेक्टिव में पूछता हूं व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर द हीट ऑफ हाइड्रेशन. द वाटर रिक्वायरमेंट 0.23. इसको इतना मिनिमम चाहिए ब्रदर. दैट मींस दिस इज मच इज एनफ. ओके. नाउ इधर है एक क्वेश्चन पूछता हूं. मान लीजिए मैंने एक M40 ग्रेड कंक्रीट बना रहा हूं. मैं है ये काम करता हूं 0.5 आ रहा है. वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 आ रहा है. मैं एक काम करता हूं 0.5 है मेरे को पसंद नहीं. दैट मींस 0.3 के ऊपर 23 के ऊपर है मैं रख सकता हूं. दैट मींस 0.3 मतलब है मैं आई वांट टू मेक दी 0.34 वाटर सीमेंट रेशियो आई वांट टू मेंटेन. बट द प्रॉब्लम कहां आता है? कंक्रीट का 3 मेजर प्रॉपर्टीज आता है. नंबर 1 इज
वर्कबिलिटी, नंबर 1 इज वर्कबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, फिर भी मैं बेसिक्स है वंस अगेन रिफ्रेश कर रहा हूं। डोंट फील दैट हमको बहुत तोप है, हम लोग को आता है, आपको कुछ नहीं आता है, आप दोनों को, मैं आपका टैलेंट जानता हूं, समझ में गया ना। सो द कंक्रीट का बेसिक प्रॉपर्टी है, नंबर 1 इज वर्कबिलिटी, सेकंड वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब है वैरायटी वैरायटी स्ट्रेंथ, इसमें कंप्रेसिव रहेगा एंड फ्लेक्सर रहेगा एंड स्प्लिट रहेगा, सो मेनी यू कैन डू एनी वंडर्स, दैट मींस ये है फ्लेक्सर। दीज आर द बेसिक, बेसिक का बात कर रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों है, कभी बोलना मत। द कंक्रीट इज हैविंग द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, नंबर 1 इज वर्कबिलिटी, नंबर 2 इज स्ट्रेंथ, नंबर 3 इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन में, लॉन्ग ड्यूरेशन में द कंक्रीट बिहेवियर, दैट मींस आपने आज एक शर्ट खरीद रहा है दुकान में जाके, आप पूछोगे ना एलन सोनी का शर्ट है 3000 है, जो सड़क में फुटपाथ में जो शर्ट है मतलब 50 रुपए में, व्हाट इज द डिफरेंस। जो एलन सोनी का शर्ट है कलर फेड नहीं होगा, 50 बार धोने के बाद भी शर्ट है एज इट इज रहेगा। सिमिलरली 50 साल के बाद, 60 साल के बाद है कंक्रीट है, मतलब वो उसका स्ट्रेंथ है, मतलब डे बाय डे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब वो जो सरिया का वगैरह ना करोजन वगैरह नहीं लगना चाहिए, दैट मींस दैट इज ए वेरी गुड ड्यूरेबल कंक्रीट। ड्यूरेबल मतलब है while the age is going on, the concrete should be very मतलब very comfortable and very strengthy concrete, then that is called the durable concrete। स्ट्रेंथ मतलब है जनरली हमें स्ट्रेंथ है, मतलब एक चीज बताता हूं, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब मैं एक चीज है मतलब ये इधर क्लियर करना चाहता हूं। आप है कभी भी कंक्रीट का क्यूब का टेस्ट कर दीजिए, 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज, 56 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 25 ईयर्स, 50 साल है ना, 100 ईयर्स। दैट मीन्स आप ऐसा देखता जाइए, हमेशा आपका जो क्यूब है, मतलब आपका 150 बाय 150 बाय 150 का जो क्यूब है ना, ये क्यूब का जो टेस्ट रिजल्ट है मतलब वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? दैट मीन्स ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। दैट मीन्स आपको बोक्स कंपाउंड जानता होगा, दैट मीन्स C2S, C3S, C3A एंड C4AF। दैट मीन्स ये पायरो प्रोसेसिंग में ये बोग इज ए साइंटिस्ट नेम, ये बोग कंपाउंड्स तो रिलीज होती है। ये बोग्स कंपाउंड क्या करती है, दैट मीन्स ये हाइड्रेशन प्रोसेस में मतलब एक्शन स्टार्ट कर देती है। एक्शन हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करेगा, दे विल स्टार्ट देयर एक्शंस। दैट मीन्स ये जो जितना मटेरियल है हाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रेशन? दैट मीन्स ये पानी के साथ है अपना जो एक्शन शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो मतलब जो डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन एक्शन स्टार्ट कर दिया, देन आपका स्ट्रेंथ है बढ़ने लगे। लेकिन है ये सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, दैट मीन्स ईयर्स, सो मेनी ईयर्स, दैट मीन्स 70 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, इतना में आपका बिल्डिंग गिर जाएगा। समझ में आ गया ना? दैट मीन्स आपने मतलब फर्स्ट 3 डेज का क्यूब सेम मतलब ये कंक्रीट मिक्स में मतलब ये क्यूब बना दीजिए, 3 डेज टेस्ट कर लीजिए, उसी लाट में से एक 7 डेज में क्यूब टेस्ट कर दीजिए, 28 डेज में टेस्ट करिए, 90 डेज में टेस्ट करिए, हमेशा रिजल्ट्स है जैसा जैसा एज बढ़ता जाएगा, while the age is increasing, आपका स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली रिलेशन। दैट मींस इट इज द स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एज, while the age is increasing, the strength is also increasing. The reason behind this is the heat of hydration. हाइड्रेशन मतलब क्या है, जो भी ये बोक्स कंपाउंड्स है C2S, C3S, C3A, C4AF क्या है, कंप्लीटली हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मान लीजिए 28 दिन में जब भी आप क्यूब टेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इधर बता रहा हूं, जब भी 28 डेज में क्यूब टेस्ट करोगे, ये क्यूब में क्या क्या मटेरियल्स है, मतलब दिस इज 150 बाय 150 बाय 150 क्यूब है ना, कंक्रीट क्यूब है। इसमें क्या क्या मटेरियल है, सैंड है, नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट है ना, वाटर है इनिशियल स्टेज में रहेगा, बाद में एवापोरेट हो जाएगा, फिर सीमेंट रहेगा। एम आई राइट? मतलब ये कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट है, इनर्ट मटेरियल्स है, वाटर है ऑलरेडी एवापोरेट हो गया, क्यूरिंग का बाद है मतलब एवापोरेट हो गया। नाउ ये सीमेंट के ऊपर है जो बोक्स कंपाउंड है C2S, C3S एंड C4AF है ना, C4AF एंड C3A है ना, ये तीनों ये चारों बोक्स कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रेशन स्टार्ट में रहेगा। हाइड्रेशन है मतलब कंटिन्यूअस ईयर्स एंड ईयर्स। दैट्स व्हाई आपका जितने साल बिल्डिंग है मतलब आगे बढ़ता जाएगा साल है, मतलब ये डे बाय डे कंक्रीट का मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। क्यों? मतलब जो भी पार्टिकल है, सीमेंट पार्टिकल है,
कंप्लीटली 28 डेज में हाइड्रेट नहीं होगा। दैट मींस जो भी ये ट्यूब में अंदर जो भी सीमेंट है मतलब कंप्लीटली हाइड्रेट नहीं हो पाएगा। वो ओनली C3S है, मान लीजिए 80% C3S है, हाइड्रेशन प्रोसेस में एक्टिवेट हो गया। मतलब C2S में ओनली जितना भी C2S है उसमें 60% मतलब केमिकल रिएक्शन में मतलब वो पार्टिसिपेट किया है। एंड C4A में ओनली 4% एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट C3A में मान लीजिए 17% एक्टिवेट होगा। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द परसेंट? ये रेस्ट ऑफ परसेंट मटेरियल क्या करेगा, ईयर्स एंड ईयर्स आगे जाके मतलब वो हाइड्रेशन स्टार्ट करेगा। जैसा जैसा वो हाइड्रेशन बढ़ता जाएगा आपका स्ट्रेंथ मतलब जो क्यूब का स्ट्रेंथ है बढ़ता जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखना ये 28 डेज का स्ट्रेंथ से 90 डेज का स्ट्रेंथ है हमेशा ज्यादा देती है। 90 डेज का स्ट्रेंथ से 180 डेज में ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, 180 डेज से 360 डेज में ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों देती है? बिकॉज जो भी ये बॉक्स कंपाउंड है उतना दिन में जाके और हल्का पुल्का और ज्यादा हाइड्रेट हो गया। मतलब 2 साल के बाद और कुछ परसेंटेज और ज्यादा हाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट मतलब है ये वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहेगा ना भाई, ये मॉइस्चर है ये पोर्स के साथ है ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद फिर हाइड्रेशन प्रोसेस में एक्टिवेट करेगा। इसलिए मतलब जो कंक्रीट है ईयर्स एंड ईयर्स मतलब ईयर्स एंड ईयर्स प्रोसेस है। कंक्रीट है एक दिन में स्ट्रेंथ है मतलब यू कांट नाउ जनरली हमें 28 दिन का स्ट्रेंथ को मतलब हमें एज पर द कोड है हमें कंसिडरेशन कर लेते हैं। ओके ना? नाउ कम बैक सो दैट है मतलब आपको आज एक चीज पता हो गया था, वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा कम रखिए एंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्यूब है मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन में स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। ओके नाउ ये क्या है? दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट ऑफ द मतलब इन द कंपनी। ये कंपनी में दैट मींस रेवा सीमेंट प्लांट में। नाउ यू सी दिस इज द मॉडर्न प्लांट। ये ओल्ड प्लांट है दैट मींस ओल्डन कंक्रीट सॉरी सीमेंट प्लांट्स है जो ये वेट प्रोसेस फॉलो करता है। बट नवेडेज है ना टेरिटरी डक्ट यूज करके दैट मींस प्री हीटर्स यूज करते हैं। प्री हीटर्स मतलब है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं आप समझने के लिए कोशिश करो। ये रोटरी किलन में गरम गरम हवा आती है ना ब्रदर, मतलब वेरी हॉट एयर आती है ना, ये हॉट एयर को क्या करता है इसको रिसाइकिल कर देता है। दैट मींस ये जो भी सीमेंट स्लरी है नाउ यू सी ये ट्रक में से जो भी लाइम पाउडर्स है मतलब साइलो में डाल देगा मतलब पूरा ये लाइम स्टोन है मतलब स्टॉक कर देगा गर्मी मौसम में सो दैट बरसात का मौसम में लैंड माइन में पानी अब आ गया तब भी सीमेंट प्लांट है लगातार साल भर चलता रहेगा। नाउ यू सी LST लाइमस्टोन पाउडर, ये लाइमस्टोन पाउडर है मतलब ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्ले मतलब ये क्या है? लाइमस्टोन पाउडर इज द calcareous material, clay is a argillation material and bauxite iron ore and the next one is alkalis। ये तीनों सप्लीमेंट्स है। ये पूरा ब्लेंडिंग करेगा, ब्लेंडिंग करके साइलो में रामील, ये रामील मतलब है एक बड़ा साइलो में करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? टॉप मोस्ट डक्ट में मतलब ये स्लरी गिरा देगा। फिर ये स्लरी से सेकंड मतलब वो स्टेज प्री हीटर में गिरा देगा, थर्ड स्टेज में, फिर फोर्थ स्टेज में। ये जब तक ये फोर्थ स्टेज में आ गया इसमें जो भी इनिशियल में जो 8% से लेके 12% पानी मिलाया ना, मतलब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर पानी क्यों मिलाना? जब भी कोई भी मटेरियल है पॉलराइजेशन के पास, पॉलराइजेशन मतलब क्या है? पाउडर बनाओगे, वो पाउडर में जब पानी मिला के ब्लेंडिंग करोगे मतलब जस्ट लाइक मतलब शेक करोगे तब क्या है? यूनिफॉर्म क्वालिटी बन जाएगा। फॉर दैट पर्पस जनरली पानी यूज करते हैं मतलब यूनिफॉर्म, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द लाइमस्टोन है बदलेगा मतलब फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज में मतलब जब भी मटेरियल में वेरिएशन रहेगा तो वो ये वेरिएशन हटाने के लिए ये पानी मिला के मतलब जस्ट लाइक स्लरी बना के वो स्लरी में यूनिफॉर्म क्वांटिटी रहेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? फर्स्ट स्टेज में कीचड़ जैसा रहेगा, सेकंड स्टेज में क्या है? हल्की पुल्की पानी है ना एवापोरेट करेगा, थर्ड स्टेज में और एवापोरेट करेगा, फोर्थ स्टेज में ऑलमोस्ट सूखी मिट्टी जैसा रहेगा। एंड जैसा रोटरी किलन तक आ गए ना ड्राई मटेरियल रहेगा। सर ये ऐसा क्यों कर रहा है सर? आप ये ऐसा मेरे से एक क्वेश्चन पूछिए। इसलिए कर रहा है आपका जो ये किलन के पास है जो भी बर्निंग मटेरियल है कम लगेगा। आजकल है नवेडेस है आंध्रा सीमेंट विशाखापट्टनम के पास है ना जो लेटेस्ट में गैस से मतलब ये बर्नर स्टार्ट कर रहा है। कुछ लोग है कोयला दैट मींस ये कोल से बर्निंग कर रहा है, फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी से ये बर्निंग है स्टार्ट कर रहा है। जितना मतलब ऑलरेडी रोटरी किलन में एंट्री पॉइंट में मटेरियल ड्राई होके आ गया उतना मतलब एनर्जी एफिशिएंट रहेगा सो दैट आपका बैग सीमेंट है सस्ता में आप दे सकता है। अदरवाइज मान लीजिए ये प्री हीटर्स नहीं लगाया मतलब पूरा स्लरी है ये रोटरी किलन में आ गया मतलब इधर क्या करेगा? ये बहुत बर्निंग जोन में जो भी फायर है मतलब ज्यादा घंटा जलाना पड़ता है सो आपका प्लांट का खर्चा बढ़ जाएगा। सो दैट नवेडेज व्हाट दे आर डूइंग 6 स्टेज प्री हीटर्स, 5 स्टेज प्री हीटर्स। ये प्री हीटर्स में क्या करेगा? जो भी वाटर है मतलब इसी में एवापोरेट करेगा, एवापोरेट फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से मटेरियल इसमें करेगा,
थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज, ये फोर्थ स्टेज से रोटरी किलिन में आएगा, फिर इधर क्लिंकर्स आ जाएगा, फिर ये क्लिंकर्स को क्या करोगे फिर सॉरी जिप्सम यूज करके फिर फाइनेस्ट मटेरियल बनाओगे, वो फाइनेस्ट मटेरियल को सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट है साइलोस, साइलोस मतलब है बड़ा बड़ा बंकर्स, वो बंकर्स में स्टोर करोगे। फिर इधर से बैचिंग प्लांट, दैट मीन्स पैकिंग प्लांट। पैकिंग प्लांट मतलब है सीमेंट 50 केजी बोरी में अगर बल्क में नागार्जुन सागर बनाना ही है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाना, श्रीशैलम प्रोजेक्ट बनाना है, एट द टाइम में बड़ा बड़ा कंटेनर्स, बड़ा बिग कंटेनर्स में मान लीजिए 50 टन 60 टन है, एट ए टाइम लेके साइट पे डिलीवरी दे देगा। ओके ना, रेस्ट ऑफ थिंग्स है आपका एमएस सिटी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। हाँ, नाउ यू सी मैंने रेड कलर में दिखा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नोटबुक में लिखो। दैट मीन्स द मेजर रॉ मटेरियल्स ऑफ द सीमेंट इज calcareous materials. Calcareous materials is measured with the help of the CaO. CaO का नॉर्मल रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब मुंह को आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये यू हैव टू मेमोराइज, दैट मीन्स 90 to 95%। दैट मीन्स लाइमस्टोन में जनरली द कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट इज 90 to 95%। लिखो नोटबुक में 90 to अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। ओके, लाइमस्टोन में। नेक्स्ट, इसके बाद क्ले। क्ले में मेजर प्रेडोमिनेंट मटेरियल इज व्हाट? सिलिका। सिलिका होना चाहिए क्ले में, अदरवाइज वो क्ले में कुछ एरियाज में जो क्ले है सिलिका कंटेंट कम है, वो सीमेंट फैक्ट्री में यूज मत करियो। यू डोंट यूज दैट मतलब क्ले, क्योंकि वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए तो वो क्ले, दैट टाइप ऑफ द क्ले व्हिच इज नॉट हैविंग द 19 to 23% सिलिका नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ द क्ले इज नॉट एट ऑल सूटेबल। कोई कभी भी मतलब ये लाइमस्टोन है, क्ले मटेरियल, ये दोनों क्या करेगा, पहले वो मिनरल चेक करेगा, मतलब ये मिट्टी है और ये लाइमस्टोन है, सीमेंट बनेगा नहीं बनेगा। वो जो सीमेंट इंडस्ट्री केमिकल इंजीनियर आ जाएगा, उसको सैंपल्स लेके आ जाएगा, उसको मतलब पूरा पाउडर XRD करेगा, फिर उसमें प्रेडोमिनेंट मटेरियल्स मतलब क्या क्या है स्टडी करेगा। अगर आपका सिलिका कंटेंट है 19 to 23% के बीच में है, तभी वो क्ले यूज करेगा, अगर नहीं है मतलब वो मिट्टी यूज ही नहीं करेगा। लाइमस्टोन में भी एटलीस्ट 70% से लेके 95% के बीच में CaO कंटेंट होना चाहिए। बाकी बॉक्साइट वगैरह है, दिस इज ऑलरेडी मतलब एल्यूमिनियम का वोर है, बॉक्साइट 3 to 10%, आयरन वोर है मतलब 0.5 to 6%, एंड अल्कालीस है वेरी लेस परसेंट। अल्कालीस मतलब है K2O एंड Na2O। बोलना मत, आपको ये सीमेंट है ऑलरेडी बीटेक में एमटेक में पढ़ लिया, मैं बहुत आई एम गोइंग इट फास्ट। ओके, नाउ वी हैव टू कवर द मोर सिलेबस। 18 तारीख को एग्जाम भी कंडक्ट करना ही है, एमएस सिटी से पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस, एटलीस्ट है सीमेंट मतलब कंप्लीट सीमेंट तक है, मैं क्वेश्चन सेट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एक दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो यू हैव टू गेट रेडी। अल्कालीस है K2O एंड Na2O, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया स्लाइड में। सो वो मैक्सिमम परसेंटेज इज लेस देन 0.5%। ये पॉइंट ये याद रखो, ये स्लाइड शो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। लाइमस्टोन है 90 to 95%, बॉक्साइट इज इक्वल 3 to 10%, क्ले कंटेंट है मिनिमम सिलिका होना चाहिए 19 to 23%। ओके, नेक्स्ट फेरस मटेरियल है 0.5 to 6%। दिस इज द मेन रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। अगर आपका मटेरियल में ये रिक्वायरमेंट है तभी वो लाइमस्टोन सूटेबल है। जब आपका क्ले में मतलब 19 to 23% सिलिका है तभी वो सूटेबल है। ये स्लाइड शो का मीनिंग वही है। दैट मींस जो भी सीमेंट इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल यूज करोगे, वो मटेरियल का रिक्वायरमेंट, मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट if you are using some material in the cement industry, then you have to write the answer like this: the limestone requirement 90 to 95% CaO should be present in the clay requirement. Silica dioxide 19 to 23% is supposed to available. Bauxite 3 to 10%, Al2O3 material oxide, that means now you see Al2O3, CaO, SiO2 लास्ट में देख रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीजन कंपाउंड्स, दैट मींस दे आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्साइड कंपाउंड्स। मान लीजिए दूध है, मतलब कैसे नापोगे भाई? लीटर्स में नापोगे ना, 2 लीटर मिल्क है 3 लीटर मिल्क। मतलब टमाटर है, कैसे नापोगे? केजी में नापोगे ना, 5 kg टमाटर 10 kg। सिमिलरली द रॉ मटेरियल कंपाउंड्स है सीमेंट इंडस्ट्री में नापोगे, यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ द ऑक्साइड कंपाउंड CaO, SiO। लास्ट में देखो वो आ रहा है, वो मतलब ऑक्सीजन। नाउ Al2O3 and Fe2O3 like that. Now typical oxide analysis of the ordinary Portland cement. पोर्टलैंड में जो इंग्लैंड के पास जो पोर्टलैंड है ना, उधर है सीमेंट है, फर्स्ट इन्वेंट हो गया, इसलिए OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना। नाउ ये जो मैं रेड लाइन में मार्क किया है, ये आपका नोटबुक में इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। दैट मींस कैल्शियम ऑक्साइड है कितने होना चाहिए, दैट मींस OPC में
60 से लेके 64% का बीच में कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, क्योंकि टुमारो आपने जो पीएचडी वर्क में सीमेंट है, मतलब केमिकल एनालिसिस करोगे, एक्सआरडी करोगे, एक्सआरडी पाउडर फॉर्म में एक्सआरडी करोगे, उसमें आपको कंपोनेंट है सीएओ कंपोनेंट कितने आना चाहिए, 60 को 64 का बीच में होना चाहिए। अगर नहीं है दैट मींस वो सीमेंट नहीं है, सम अदर मटेरियल होगा, आई डोंट नो। नेक्स्ट सिलिका, सिलिका कितने होना चाहिए ब्रदर सीमेंट में, 19 to 23, ये रखना पड़ेगा आज ही नाइट में, आप तुरंत पढ़ लीजिए। CaO 60 to 64, SiO2 19 to 23, Al2O3 3 to 10%, फेरस 0.5 to 6%। एटलीस्ट ये ऊपर का जो चारों आइटम्स है, मैं रेड कलर इसलिए किया है मेरा स्लाइड शो में, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। T1 में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ Al2O3 इन केस ऑफ OPC? आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 to 10%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कालीज? अल्कालीज का परसेंटेज OPC में कितने होना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट इज 1.2%, मिनिमम लिमिट इज 0.4। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का कंटेंट है, मैक्सिमम इज 3.5। ये स्लाइड है, स्लाइड नंबर 14। दी स्लाइड नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना। ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी OPC। सिमिलरली पीपीसी में क्या होगा, दैट मींस पीपीसी में थोड़ा ये सिलिका कंटेंट बढ़ जाएगा, समझ में आ गया ना। सो मतलब अभी आज का तारीख में वी आर गोइंग टू दी ओनली ओपीसी बारे में स्टडी करेंगे। जब पीपीसी आ गया था तब वो पीपीसी बारे में मैं बताता हूं। ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुमारो आई विल आस्क दी सम क्वेश्चंस टू यू टू पीपल, ओके। नाउ फेस कंपोजिशन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S C2S C3A एंड C4। जब भी आपका जो सीमेंट प्लांट में मतलब जो ये नाउ यू सी, मतलब मेरा स्क्रीन दिख रहा होंगे आपको, नाउ यू सी ये क्या है, ये रोटरी किलन है। ये रोटरी किलन में ये फायरिंग जोन है, ये आग है, दिस इज ए फायर। ये फायर है कितने टेम्परेचर, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कम नहीं भाई, 1600 मतलब इमेजिन करो कितने मतलब गरम रहती है। सो दैट है इसका लेंथ कितने है, 50 मीटर से लेके 200 मीटर रहती है ये रोटरी किलन। दैट मीन्स ये किलन है, मतलब जस्ट लाइक इसका डायमीटर है 3 to 8 मीटर्स डाया। दैट मीन्स ये कितने बड़ा है देखो, ये रोल करता रहेगा। सो दैट इस साइड क्या करोगे, इस साइड है स्लरी आएगा, स्लरी। ये स्लरी मतलब है क्या है, स्लरी मतलब है आप जानता है लाइमस्टोन प्लस क्ले प्लस बॉक्साइट प्लस फेरस प्लस अल्कालीस, ओके। ये 5 मटेरियल का जो कीचड़ है पानी के साथ इस साइड आता रहेगा, एंट्री करता रहेगा। मतलब दिस इज दी बर्निंग जोन, दिस इज दी मतलब पायरो प्रोसेसिंग जोन, दिस इज दी एंट्री जोन। ये जैसा इस जोन में क्या है 1600 डिग्री रहेगा, इस जोन में 1400 रहेगा, इस जोन में 900 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जैसा ये स्लरी इस साइड आएगा, आता रहेगा, इसमें क्या है पायरो प्रोसेसिंग चलेगा, पायरो प्रोसेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पायरो प्रोसेसिंग मतलब क्या है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन दी ऑल द इंग्रेडिएंट्स। ये लाइमस्टोन क्ले बॉक्साइट फेरस मटेरियल है, अपना मतलब स्टेट है चेंज कर देगा मतलब क्या है, दैट मींस इसका जो पायरो प्रोसेसिंग में अपना केमिकल मतलब स्टेट है चेंज कर देगा। सो दैट है जस्ट लाइक एक बॉल्स, छोटा पेबल्स जैसा गोली है ना, ये छोटा गोली से नीचे गिरेगा, इसको बोलते हैं क्लिंकर्स। ये क्लिंकर्स को जब पाउडर बनाओगे, जस्ट एक पाउडर बनाओगे, इसमें एक ब्यूटी आएगा। दैट ब्यूटी इज व्हेन इट इज मिक्सड विद द वाटर, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी बनेगा। दैट बाइंडिंग प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी बनेगा। दैट प्रॉपर्टी कहां से आ गया, ये पायरो प्रोसेसिंग से आ गया। ये पायरो प्रोसेसिंग में क्यों आ गया, ये पायरो प्रोसेसिंग में C3S C2S C3A एंड C4AF ये चारों बोग्स कंपाउंड फॉर्म हो गए। ये बोग इज ए साइंटिस्ट, ही इज इन्वेंटेड दिस 4 कंपाउंड्स। जब भी ये पायरो प्रोसेसिंग में ये 5 मटेरियल, ये जो भी इनिशियल मटेरियल्स है, ये पायरो प्रोसेसिंग मतलब पायरो मतलब क्या है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हीट, मतलब जब भी गर्मी में मतलब कोई भी मटेरियल है डाल दोगे मतलब जल जाएगा। वो पायरो प्रोसेसिंग में क्या है, जो ये सारे मटेरियल से मतलब ये बोक्स कंपाउंड निकलेगा। बोक्स कंपाउंड से C3S C2S C3A C4A ये बोक्स कंपाउंड है निकलेगा। ये बोक्स कंपाउंड ये के क्लिंकर में रहेगा, समझ में आ गया ना। ये बोक्स कंपाउंड का ब्यूटीफुल थिंग क्या है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ वाटर, हाइड्रेशन स्टार्ट करेगा, फिर कुछ देर के बाद 3-4 घंटे के बाद जस्ट लाइक ए स्टोन मटेरियल एग्रीगेटेड, दैट मींस एडिटिव प्रॉपर्टी से मतलब एक सॉलिड मास बन जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर सीमेंट। ओके, नाउ कम बैक टू दिस स्लाइड शो।
सो ये चारों मटेरियल्स है बोक्स कंपाउंड, मतलब मैं सिंपल वे में बता दिया। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब क्या है, C3S। देखो ये नाम है, आप खुद पढ़ो, मैं अभी इस स्टेज में मैं नहीं बता दूंगा, आपको पता है। C2S मतलब डाई, डाई मतलब है 2। नेक्स्ट ट्राई, ट्राई मतलब है 3, है ना। अल्यूमिनिएट मतलब टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, है ना। C4 मतलब व्हाट इज मेंट बाय C मतलब है CaO, ये मतलब Al2O2, F मतलब है Fe2O3। मतलब देखो ये भूलना मत, व्हाट इज C मतलब सिंपल C नहीं है, C मतलब CaO, S मतलब SiO2। देखो आपको इसको इस फिगर में इसको अब्रिविएशन बता रहा हूँ। देखो CaO का अब्रिविएशन है C, SiO2 का अब्रिविएशन है S, Al2 का अब्रिविएशन है A, Fe2O का अब्रिविएशन है F, MgO का अब्रिविएशन है M, VSB, my name is VSB, complete name is what, वेलगा शरद बाबू। सो सिमिलर वे कैल्शियम ऑक्साइड को आप C से मतलब अब्रिवेट करो, SiO2 को S से अब्रिवेट करो, Al2O3 को मतलब A से अब्रिवेशन, Fe2O3 को F। दैट मींस ये नेक्स्ट स्लो में स्लाइड में C3S, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C3S? C3S मीनिंग इज, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो C3S, C3S का मीनिंग है मतलब 3CaO डॉट SiO2, ये S, C, समझ में गया ना। मान लीजिए C2S, व्हाट इज द मीनिंग? दैट मीन 2CaO SiO2, दिस इज द मीनिंग, समझ में गया ना। सो ये अब्रिविएशंस है, बाद में आप देख लेना। हाँ ओके, विद इन 2 मिनट्स आई विल कंप्लीट। हाँ ओके। हाँ, ये फेस रिएक्शंस है बोक्स कंपाउंड बारे में बता दी। इसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोक्स कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, द जनरल परसेंटेज इज 30 to 48%, C2S है 27 to 40%, C3A है 4 to 10%, फेराइट है मतलब 5 to 15%, टोटल 100% ऑफ दी सीमेंट में ये चारों बोक्स कंपाउंड रहेगा। कौन सा बोक्स कंपाउंड ज्यादा रहेगा? ज्यादा C2S एंड C3S रहेगा। नाउ यू सी, दैट मींस C3A C4AF है थोड़ा लिटिल बिट कंपैरेटिवली कम स्टेज में रहेगा, समझ में गया ना। नाउ ये हाइड्रेशन रिएक्शन, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन? द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट इज कॉल्ड द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। याद रखना, द हाइड्रेशन मींस द रिएक्शन बिटवीन पानी एंड सीमेंट का बीच में दोनों को केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या है? देखो C3S, C3S इज व्हाट? C3S is what? 3CaO and SiO2 plus 6 times of H. H मतलब अब्रिविएशन क्या है? H2O, H2O को अब्रिविएशन है, H2O को अब्रिविएशन है H। सो मैं एक काम करता हूं, C3S को मतलब पानी मिलाता हूं, देन क्या क्या बनेगा? CSH, CSH जेल मतलब है दिस इज द बाइंडिंग मटेरियल। एक्चुअली जो ताकतमंद रहता है वो ये पोर्शन है सीमेंट में, जब भी मतलब सॉलिड बनेगा, पत्थर बनेगा, कौन सा पोर्शन ताकत देती है? ये CSH जेल है, मतलब दिस इज द पोर्शन गिविंग द स्ट्रेंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये CSH जेल इज द मतलब रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ इन द सीमेंट। ये CaOH क्या है? ये CaOH है फालतू मटेरियल है। अरे भाई कभी भी है ना, मान लीजिए सब्जी काटता रहेगा, मतलब कुछ कीचड़ भी कचरा भी आ जाएगा ना। मान लीजिए लौकी काट रहा है भाई, आपने सब्जी बनाने के लौकी काट रहा है, वो लौकी में मान लीजिए कुछ ऊपर का जो मतलब चमड़ी है उतारोगे ना। सिमिलरली ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एंड CSH जेल इज जो मलवा, दैट मींस वेरी गुड मटेरियल, है ना। समझ में आ गया ना। मतलब कितने ये जनरल इक्वेशन है, 100 मतलब प्लस 24 मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ गया ना। फिर 75 ये बैलेंसिंग, 100 प्लस 24 124 हो गया, 75 प्लस 49 ये बैलेंसिंग है। मतलब केमिस्ट्री में आपको पता है CSH जेल प्लस 3, ये चारों इक्वेशंस है, याद रखिएगा। दैट मींस C2S का जो हाइड्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट करता है, दैट मींस C2S प्लस 4 टाइम्स ऑफ द वाटर गिव्स राइज टू CSH जेल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। नेक्स्ट C3A, एक्चुअली ये गलत है, दैट मींस ये C2A नहीं है, ये C3A, ओके, ये प्रिंट मिस्टेक है। C3A प्लस 6 टाइम्स ऑफ द वाटर H2O गिव्स राइज टू C2AH6। नेक्स्ट C4AF प्लस 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ये अनवांटेड मटेरियल है, ये फालतू मटेरियल, ये विदाउट स्ट्रेंथ, ये Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, दिस डोंट गिव एनी स्ट्रेंथ। ये मटेरियल प्लस 10 times of the water will give rise to C2AH plus C3F6। Now नीचे का देखो, 1 gram of the cement need 0.3 grams of the water for chemical reaction। very very important, 0.3 grams of the cement को मतलब 1 gram of cement है हाइड्रेशन में, मतलब एटलीस्ट 0.3 grams of water है, बिल्कुल चाहिए।
अगर 0.3 से भी आपने वाटर सीमेंट रेशियो कम रखा है, असल आपका हाइड्रेशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। स्ट्रेंथ बहुत दूर का बात है। अगर पहले सूखी सूखी सीमेंट में स्ट्रेंथ कहां से आएगा यार? सीमेंट में, कंक्रीट में स्ट्रेंथ कब आएगा? व्हेन वाटर है सफिशिएंटली मिक्सअप करोगे तभी स्ट्रेंथ आ जाएगा ना। असल आपका जो सीमेंट में पानी कम है, पहले वर्कबिलिटी दूर का बात है, पहले तो हाइड्रेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर for the hydration process is 0.3 grams. Very this point. 1 gram of the cement needs 0.3 grams of the water for the hydration or chemical reaction, and 0.3 grams of the complete hydration. Complete hydration मतलब है, मान लीजिए मैं गर्मी मौसम में आपको 1 ग्लास पानी पिलाया, थोड़ा बहुत है जिंदा रहोगे। मान लीजिए मैं 4 ग्लास पानी पिलाया आपको, बोलोगे हाँ सर बस थैंक यू सर, क्योंकि थक गया। दैट मीन्स मतलब कंप्लीटली पेट भर गया। सिमिलरली कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 0.4 ग्राम चाहिए, बट एटलीस्ट मिनिमम क्वांटिटी 0.23 चाहिए भाई। आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज। समझ में गया ना? 16th स्लाइड तक है, मैं कंप्लीट कर दिया है ना। ओके, नाउ इफ यू हैव दी एनी डाउट्स आस्क मी। ओके सर रोटरी किलन का जो वो रहता है सर, इंक्लिनेशन, वो कितना रहता है सर? वो मतलब वो किसी टेक्स्ट बुक में देखो यार, वो उससे मतलब ज्यादा जानकारी